یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہماری ماں بہنوں کو بہت سے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم 4 رکعتوں تراویح ہے جی۔ ابھی مغرب سے پہلے عورتوں میں بیان ہوا، شاید وہ ساری بات آ گئی، اگر نہیں آئی تو آپ حضرات اپنے گھر میں بتائیے گا کہ جیسے مرد پر تراویح ہے عورت پر بھی ویسی ہی تراویح ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں تراویح بھی نہیں پڑھتی ہے، نماز بھی نہیں پڑھتی ہے، بعد روزہ بھی نہیں رکھتی، اور ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ تراویح کو بس وہ سمجھتی ہے، وہ سمجھ یہ رہے ہیں بالکل مذاق کی چیز، بس تراویح کے شروع میں کھڑے ہو گئے اور کھیلتے مذاق کرتے رہتے ہیں، آخر میں جب سلام دیتے ہیں اس وقت جا کر کے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ مذاق ہے، یہ تراویح کے ساتھ مذاق ہے۔ اور بعض نوجوان دکاندار تو یہ کرتے ہیں پہلے دن تراویح میں آ جائیں گے اور آخری دن جب مٹھائی کٹے گی، جس دن قرآن مکمل ہوگا اس دن آئیں گے تراویح پڑھنے۔ یاد رکھنا یہ اللہ کو دھوکہ دینا نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ تراویح مکمل پڑھنا ہے، پورا قرآن سننا ایک مکمل سنت ہے، اور پورے رمضان تراویح پڑھنا مکمل سنت ہے۔ عورتوں کے لیے بھی تراویح پڑھنا مکمل ہے، مکمل رمضان پڑھنا ہے۔ ہاں کوئی عذر ہو وہ الگ مسئلہ ہے، بغیر عذر کے عورتوں پر روزہ بھی ہے اور تراویح بھی ہے۔ اور اکابرین اور بزرگوں کے خاندان میں تو یہ لکھا ہے عورتیں کتنی قرآن پڑھتی تھی، رمضان میں ایک دن میں 15 پارے قرآن ہماری مائیں اور بہنیں پڑھا کرتی تھی۔ آپ اپنے گھر کا جائزہ لیں، ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں، ہماری بیوی کیا پارا روزانہ قرآن پڑھتی ہے، ہماری بیٹی کیا پارا پڑھتی ہے، ہماری ماں کیا پارا پڑھتی ہے، ہم لوگ کتنا پارا پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں خالی سننے سے کچھ نہیں ہوگا، تقریریں سنتے ہیں، بھائی بہت سنے، بہت اچھا لگا، بہت اچھا، ارے اچھا تو لگا کیوں کیا کیے بھائی، کچھ سمجھ میں بھی آیا، عمل بھی کیے۔ یہاں سے ارادہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اس رمضان میں ہم تراویح نہیں چھوڑیں گے، ہم رمضان کا روزہ نہیں چھوڑیں گے، رمضان میں گناہ نہیں کریں گے۔ رمضان میں جوان روزہ رکھتا ہے، دن بھر موبائل میں فلمیں دیکھتا ہے، گانا سنتا ہے، ہماری جوان بہنیں بات روزہ تو رکھتی ہیں، ہماری بیویاں اور بہنیں مائیں روزہ تو رکھتی ہیں، لیکن ان کو یہی نہیں مسئلہ پتا کہ رمضان میں روزہ رکھ کر کے گناہ کرنا کتنا شدید گناہ ہے۔ فرمایا کہ جس طریقے سے نیکیوں کا 70 گنا نیکی بڑھ جاتا ہے، ایک نفل کرو 70 میں نفل کا ثواب، ایسی ایک گناہ کرو 70 سے زیادہ گناہ کا ثواب، گناہ کا عذاب کو رمضان میں ملے گا۔ لیکن نوجوانوں کا اور عام حالات میں بن گئے، عورتوں اور مردوں کا روزے کی حالت میں بھی روزہ رکھا ہوا ہے، تلاوت نہیں کرتا، فلمیں دیکھتا ہے، گانا سنتا ہے، اور معاف کیجیے گا ان دنوں میں بھی ایسا گناہ کرتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ یوں اس کا مثال یوں سمجھو کہ ایک آدمی بالٹی میں دودھ لے جا رہا ہے اور نیچے سے سوراخ کر دے، نیچے سے کیا کر دے، سوراخ کر دے، اور جب اس بالٹی کو بھر لے گیا دیکھ رہا ہے کہ دودھ تو اس میں ہے نہیں، بھائی جب سوراخ نیچے سے ہے دودھ کہاں ٹکے گا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا ہوا، کہ دودھ لے کے آ رہے تھے لیکن وہ جو ہے سوراخ سے سارا دودھ نکل گیا، کچھ نہیں بچا۔ فرمایا اکابرین علماء لکھتے ہیں یوں ہی تمہارا روزہ کا حال ہے، اگر روزہ رکھ کر کے تم موبائل دیکھتے ہو، گانا سنتے ہو، فلم دیکھتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، بھائیوں کو ستاتے ہو، دوسرے کی بہن کو غلط نظر سے دیکھتے ہو، دوسرے کی بیٹی کو غلط نظر سے دیکھتے ہو، یہ سارا گناہ اگر تم کرتے ہو، گویا کہ تم نے بالٹی پکڑ لی ہے، یہ بالٹی روزہ کے معنی ہے، دیکھنے کے معنی، اور نیچے سے سوراخ کر لیا، جھوٹ کا سوراخ، دھوکہ کا سوراخ، دغا بازی کا سوراخ، دوسرے کو پریشان کرنے کا سوراخ، اور فلم دیکھنے کا سوراخ، موبائل کو گھومنے کا سوراخ، پورا روزہ کا ثواب نکل گیا، تراویح کا ثواب نکل گیا۔ اور جب رمضان میں باب الصائم میں نکل جائے گا، جو باب الریان ہوگا، جو روزے داروں کے لیے جنت میں دروازہ بنے گا، جس کا نام ہوگا باب الریان، یعنی وہ دروازہ
जिसके अंदर घुसते ही आदमी शराब हो जाएगा। ये चाहेगा कि हम भी रोजा रखे थे, हम भी तरावी पढ़े थे, चलते हैं इससे घुसते हैं। आए देखो तेरा लिस्ट में का रोजादार में तेरा नाम नहीं, तू रोजा भी रखा था, फिल्म भी देखा था, तू रोजा भी रखा था, झूठ भी बोला था, तू रोजा भी रखा था, ग्राहकों को ठगता भी था, तू रोजा भी रखा था, अपने भाइयों को सताता था, तू रोजा भी रखा था, अपने माँ बाप को पिटाई उसको सताता था, तू रोजा भी रखता था, सारे विवाह करता था। इसलिए तुझे रोजा का सवाब मिलने वाला, बाबू रमजान से तुझे जाने की इजाजत नहीं। मुसलमानों, इसलिए हम रमजान की कदरदानी करना सीखें। रमजान की कदरदानी जो करेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने उनको ईद दी है, जिसको ईद उल फितर कहते हैं। ईद के माना खुशी। एक हदीस में आया, अल्लाह के नबी में फरमाते हैं कि ईद और खुशी उस बंदे के लिए, उस मोमिन के लिए मैंने दिया है जो पूरे रमजान का आदत में रोजा रखा हो, तरावी पढ़ा हो, कुरान की तिलावत किया हो, उनके लिए खुशी है, ईद है। वो आए हमारी ईदगाह में, मैं उन्हें इनाम तकसीम करूंगा जिन्होंने रोजे की नाकदरी की है, रोजा नहीं रखा, तरावी नहीं पढ़ा, रोजा की तैयारी की। ऐसे मुसलमानों के लिए फटकार है, वही है, ईद नहीं है, वही है। वो मेरे ईदगाह में आए नहीं, आने की जरूरत नहीं है। हुजूर हदीस में गुस्सा में ये फटकार दे रहे हैं, ऐसे मुसलमान को ईदगाह आने की इजाजत नहीं जो रोजे की कदरदानी न करे। मुसलमानों में सीख कर जाओ, ताकि घर में मां बहनों को बताओ और यही बताओ कि मां बहनों का जैसे घर के अंदर घुसकर पर्दे लगाना जरूरी है। अगर वो किसी जरूरत से निकले बाजारों में, किसी जगह भी बुर्ते के अंदर, पर्दे के अंदर रहना अपनी इज्जत की और अपने आप की, अपने जिस्म की, अपने सारी चीजों की, सारी इज्जत और दौलत की हिफाजत करना उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। आज हमारा इलाका इन तमाम बीमारियों में मुब्तला होता जा रहा है, इसलिए हम फिक्र करें। और माँ बाप के लिए जिम्मेदारी है, माँ के लिए भी, बाप के लिए भी, कि अपने को नेक बनाने की कोशिश करें और साथ में भी ये कोशिश करें कि अपने औलाद को नेक बनाएं। अपनी औलाद को क्या बनाएं? नेक बनाएं। जब माँ बाप नेक तो औलाद भी नेक, और जब माँ बाप गुनहगार होगा, माँ बाप गुनाहों में लपट होगा, तो बच्चा भी उसी के नक्श कदम पर चलेगा, बच्चा भी उसी तरह से अमल करेगा। बाप शराबी होगा तो बच्चा भी शराबी होगा, बाप बेनमाजी होगा तो बच्चा भी बेनमाजी होगा, माँ नमाजी होगी तो बेटी भी नमाजी होगी, माँ नमाजी होगी, रोजादार होगी, कुरान की तिलावत करने वाली होगी, तो बेटा बेटी भी नमाज और तिलावत को पाबंद होगी। इसलिए मुसलमानों, हमें अपने आप को नेक बनाने की कोशिश करना और अल्लाह से रो करके, रातों को उठ करके नमाजों में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगना है। रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाह, ए अल्लाह, फरमाया ए अल्लाह मुझे नमाज पर इस्तिकामत और नमाज पर पाबंदी करने वाला बना दे और मेरी औलाद को भी नेक बना दे। इस तरह से दुआएं मांगे रातों को उठ करके नमाजों में। जब अल्लाह ताला जब आपकी दुआओं को कबूल करेगा तो आपको भी नेक बनाएगा और आपकी औलाद को भी नेक बनाएगा। मेरे भाइयों, असल चीज ये है कि इंसान नेक बन जाए, आलिम बन जाए, हाफिज बन जाए, कारी बन जाए, सब कुछ बन जाए। एक आम आदमी के लिए भी जरूरी ये है कि वो नेक बन जाए। अगर नेक हो गया तो फरमाया हम और आप कामयाब हैं। अगर नेक नहीं बन पाए तो मेरे भाइयों, हमारी गाड़ी दुनिया में फंस जाएगी, आखिरत में भी फंस जाएगी। इसलिए एक फारसी का शायर है, वो ये कहता है, खिश्त अव्वल चूने है मेहमान तक तासुरैया मीर और दीवार को। पहली ईंट अगर टेढ़ी हो गई तो दीवार टेढ़ी उठेगी, जितनी दीवार उठाया जाए वो टेढ़ी ही हो जाएगी। अगर पहली ईंट सीधी लग दी जाए तो दीवार सीधी हो जाएगी।
आज हम भूल कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सही बचपन में उसकी सही तरबियत, सही तालीम नहीं कर रहे हैं। कुरान से हमारा बच्चा बचपन से नमाज का आदी नहीं हो पा रहा है, गुनाहों से बचने का आदी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उस ऐसी बुनियादी गलती करने की वजह से हमारी औलादें हमारे हाथ से निकल जाती है। जब माँ बाप नेक होंगे तो औलाद भी नेक होंगे। सूरह कहफ में वाक़िया लिखा है हजरत खिज़र और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास हजरत मूसा पढ़ने गए थे, तो एक जगह वो गुजर रहे थे तो देख रहे थे कि दीवार गिर रही है, पुराना सा मकान है, दीवार गिर रही है। ये दोनों मेहमान थे, भूखे थे। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ज्यादा इल्म रखते थे हजरत मूसा से, हालांकि ये भी नबी थे, इनका भी इल्म रहा, लेकिन अल्लाह ने एक आजमाइश के तौर पर और एक सबक के लिए ले लेते। हजरत मूसा ये कह रहे थे हजरत गांव वालों ने हमारी मेहमानी नहीं किया, हम भूखे हैं, खाना तक नहीं पूछा, और आप हैं कि इनकी दीवार सीधी कर रहे, छोड़िए जाने दीजिए। तो हजरत खिज़र ने फरमाया कि नहीं मूसा तुम नहीं समझ रहे, छोड़ो उसको सीधी कर दो। अल्लाह लगा देते, यूं दीवार को हाथ लगाया, सीधी कर दिया, दीवार सीधी हो गई। अब जो है उनको जब आगे चले तो कहते देखो तुम टोक टाक करते हो, तुम्हारी छुट्टी, अब तुम मेरे यहाँ पर मिलता हो। लेकिन ये सुनो, ये कई चीजें बताया तो इतना मौका नहीं है। दीवार के बारे बताया, फरमाया तुम ये कह रहे थे कि लोगों ने, गांव वालों ने हमको दावत नहीं की, खाना नहीं खिलाया, और इस वजह से दीवार को न सीधी कीजिए। हजरत खिज़र ने फरमाया असल बात यह है कि इस दीवार का मालिक 2 यतीम बच्चा है। गौर से सुनना, कितना यतीम बच्चा है? इस घर का मालिक 2 यतीम बच्चा है। मैं इस दीवार को इसलिए सीधी कर रहा हूं कि इस दीवार के नीचे में खजाना छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? सोना चांदी अशरफी छुपा हुआ है। मैं इस दीवार को सीधी कर दिया, अगर सीधी न करता तो दीवार गिर जाती और ये सोने जवाहरात निकल जाते, इनके बिरादरी खानदान वाले, गांव वाले मालूम कर लेके चले जाए। मैंने दीवार सीधी कर दी ताकि इसका माल महफूज हो जाए, जब तक ये छोटा छोटा यतीम बच्चा जवान हो जाए, मैं इसलिए दीवार सीधी कर दिया। मुफस्सिरीन ने इस वाक़या के तहत लिखा है कि इन दोनों बच्चे के माँ बाप जद्दे अमजद, बल्कि यूं लिखा है अपना बाप नहीं, इनके कई पुश्तों में बाप, दादा, परदादा, लकड़दादा, फकरदादा, ऊपर खतरदादा में एक बहुत बड़ा वली, नेक इंसान इसकी नस्ल में गुजरा था। फरमाया वो इन दोनों के अब्बा यानी इनके जद्दे अमजद बड़े नेक लोग थे। उनकी नेकी की वजह से अल्लाह ने उनके दादा पर दादा की नेकी की वजह से उनकी दीवार को सीधी कर दिया, ताकि इस यतीम के माल को कोई लूट न सके, कोई चोरी न कर सके। जब खानदान में बाप या दादा या खानदान में कोई नेक गुजरता है तो अल्लाह ताला उनकी नस्लों की, माल की, जान की, इज्जत और आबरू की हिफाजत करता है। मुसलमानों, जब दादा पर दादा नेक थे उसकी वजह से अल्लाह ने दीवार सीधी कराया और उनके दफीना और सोने चांदी अशरफियों की हिफाजत कराया। अगर कोई माँ बाप नेक होगा, माँ नेक हो, बाप नेक हो, यकीन जानो कि उनके औलाद पर ऐसी असरात मरतब होंगे कि बचपन से ही वो बच्चा नेक बन जाएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया, आप जानते होंगे, यहाँ जमात के साथी सारे बैठे जी, हम जमात में जा रहे हैं, लेकिन कभी आप निजामुद्दीन जाए बंगला वाली मस्जिद तो वहां से निकलकर आप वहां भी जाए और आप यहाँ पढ़ाएं। हजरत निजामुद्दीन औलिया बहुत बड़े अल्लाह के वली, लेकिन बचपन का जमाना वाकया लिखा है। 5 साल की उम्र में हजरत निजामुद्दीन औलिया के अब्बा का इंतकाल हो गया और हजरत निजामुद्दीन औलिया बहुत गरीब घराने में थे। इंतकाल होने के बाद लिखते हैं कि जब हमारे घर में खाने पीने की चीज नहीं होती थी तो मेरी अम्मी ये कहती बड़ी नेक थी, अल्लाह माँ नेक तो बेटा निजामुद्दीन पैदा हुआ जी, माँ नेक थी
अगर माँ फिल्म बात तो बेटा शाहरुख खान पैदा हो। जी पहले मौलाना तारीफ दे दो, बच्चा को लाता है जी सर में हाथ फेर दो, दम करा दो। बहुत बड़े अल्लाह के वाली आए, ये क्या करते हैं, बंबई से दौड़े दौड़े पोता को लेके आ रहे, नाती को थोड़ा दम कर। भाई दम से ही बनने वाला, दम से और वो बेदम हो सकता है। मसला तो तरबियत से है, मसला तो माँ बाप को बनना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगा। फरमाया हजरत निजामुद्दीन लिखते हैं, मेरी अम्मी जिस दिन ये कहती थी कि बेटा आज घर में खाने के कुछ नहीं है, हम सब अल्लाह के मेहमान हैं। क्या फरमाते थे, आज घर में एक दाना भी नहीं, हम सब अल्लाह के मेहमान। हजरत निजामुद्दीन फरमाते जब मेरी अम्मी ये जुमला बोलती थी, मैं खुशी से कूद जाता था, इतना मजा आता था कि आज हम अल्लाह के मेहमान। अरे अल्लाह तो सारी दुनिया का मालिक, सारी दुनिया का मालिक, और अल्लाह का मेहमान, कितना मजा। फरमाया एक आदमी आया, एक बोरी आटा का दे गया, हम उठता गए खाते खाते, दुआएं करने लगे कब ये आटा खत्म होगा। वो जुमला निकलने के लिए कि मेरी अम्मी ये कहे कि हम अल्लाह के मेहमान हैं। हजरत निजामुद्दीन लिखे दिल्ली वाले, एक मौके से हजरत निजामुद्दीन की अम्मी ने बुलाया, निजामुद्दीन सुनो, बहुत बुढ़िया हो गई थी, कमजोर हो गई, सुनो जब मैं मर जाऊं तुम अल्लाह का भरोसा करना, जब मैं मर जाऊं तुम अल्लाह का भरोसा करना, अल्लाह ही तो सब मांगना, अल्लाह ही सब कुछ देता है, अल्लाह ही सब करता है। आज का बाप सिखाता है, आपकी माँ सिखाती है, कोई कोई बोली है वो सिखाती है, और पैदा होती ही मोबाइल पर चलाना सिखाती है, पैदा होती ही सिखाती है कि क्या आने दिलेगा तो दे, को मुरादा आने दे, नहीं बच्चे को सुनाओ ये अल्लाह ने दिया, तो तेरे अब्बा को कौन दिया, अल्लाह ने दिया है। तेरे अब्बा की क्या मजाम कि तेरे अब्बा खरीद कर ला दे, तेरे अब्बा को तो मोहताज है, अपना खरीद नहीं सकता, अपना बजारा खरीद नहीं सकता, अल्लाह ने दिया तो वो लाया। यकीन बनाओ अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का, ये बेटी का यकीन बनाओगे, कल इस बेटी की शादी होगी, ये तुम्हारी नतनियों का यकीन बनाएगी, ये तुम्हारे नातियों की यकीन बनाएगी। आज माँ बाप भी का यकीन बना हुआ जी, हम दुकान से पलते हैं, हम खेत से पलते हैं, हम नौकरी से पलते हैं, नहीं हमें अल्लाह पर पालता है। कुरान में कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस बाप के लिए है, उस रब के लिए है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन जो सारे जहानों का पालने वाला है, जो सारे जहानों का परवरिश करने वाला है, जो सारे जहानों को खिलाने वाला है, जो सारे जहानों को कपड़ा देने वाला है, जो सारे जहानों की जरूरत को पूरा करने वाला है। तुम कौन होते हो? मैं भूल गई, तू तो अपना नहीं खोया जानी किया, तो अपना अमूल नहीं खोआ पड़ी, इलाका ये चीनी खवाई नहीं, नमक खवाई नहीं, गोश्त खवाई नहीं, मछली पच्ची खवाई नहीं पड़ी, तीन को साथ पूरा हो। है अल्लाह खिलाता है, ये यकीन बनाओ अपनी बीवी का, ये यकीन बनाओ अपनी बेटी का, यकीन बनाओ अपने बच्चों का, ये बनाया यकीन, इस यकीन को बनाया तो हजरत निजामुद्दीन की अम्मी ने कहा बेटा अगर मैं मर जाऊं तो तुम अल्लाह पर तवक्कुल करना, अल्लाह ही की सरपरस्ती में रहना। घबराने लगे, रोने लगे। 5 साल की उम्र, अब्बा का इंतकाल हो गया। अब्बा का क्या हो गया? इंतकाल। छोटा सा बच्चा 5 साल का। अभी हम परसों एक मदरसे में गए तो मौलाना ने मुझे कहा मेरा ये बच्चा 5 साल का था कि मौलाना दुआ फरमा दें, 5 साल का बच्चा 5 पारे का हाफिज हो चुका है। 5 साल का बच्चा कितने पारे का हाफिज हो चुका? और हमारा 12 साल का बच्चा अभी मकतब नहीं गया। जी हंसने की बात नहीं, मुसलमानों माकूल दबाओ। आज का मुसलमान नौजवान लड़का अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना नहीं आता। आप पूछो रसूलुल्लाह का नाम, बहुत सारे नौजवान हमारे नबी का नाम पता नहीं उनको। फरमाया हजरत निजामुद्दीन से बेटा कल आना, तुम्हें एक बार बताऊंगा, तुझे खास बात हमने अभी बता दी। अरे बता दूंगा तो एक दिन में,
ये चले गए, इत्मीनान हो गए। 2-4 दिन गुजरे, तहज्जुद का वक्त हुआ। कितना? तहज्जुद का वक्त। बुढ़िया थी, कुर्सी पर बैठती थी, नौकरानी से कहे कि जाओ निजामुद्दीन को बुला के लाओ। मालूम ये हुआ कि अम्मी तहज्जुद गुजार थी और बेटा भी तहज्जुद गुजार। 5 साल का बच्चा तहज्जुद पढ़ रहा है। अम्मी को ये पता था कि निजामुद्दीन भी तहज्जुद पढ़ रहा होगा, इसलिए वो जो है अम्मी कहती है जा निजामुद्दीन को बुला देना। नौकरानी जाती है, लड़की है, अम्मी के पास रहती थी, जा निजामुद्दीन को बुला के ला। नौकरानी गई निजामुद्दीन को बुलाने के लिए कि जी अम्मी बुला रही है। ये गए दौड़े दौड़े। मालूम ये हुआ जब माँ नमाजी थी, माँ तहज्जुद गुजार थी, निजामुद्दीन जैसा बेटा पैदा होता था। माँ गंदी हो गई, बेटा खतरनाक पैदा हो। इसलिए जी तो हजरत निजामुद्दीन को बुलाओ। अम्मी आई, अम्मी के पास निजामुद्दीन आया। फरमाया निजामुद्दीन अब तो मैं आंखों से देख नहीं सकती, तेरा हाथ रहा, दाया वाला हाथ, दाया हाथ पकड़ती है और कहती है ए अल्लाह मैं तो अब देख भी नहीं सकती, मैं निजामुद्दीन को तेरे हवाले करता हूं। आज से निजामुद्दीन तेरे हवाले, तेरे सरपरस्ती में छोड़ता हूं। अल्लाह निजामुद्दीन की सरपरस्ती फरमा, निजामुद्दीन की तरबियत फरमा। ये कहकर उनकी अम्मी सोई है और इंतकाल कर जाती है, इंतकाल कर गई। हजरत निजामुद्दीन फरमाते इस दुआ, इस वाकया का इतना मेरे ऊपर असर पड़ा कि मैं उस दिन सारा तवज्जो, सारे मकसद, सारा वह अल्लाह की तरफ, अल्लाह के भरोसे पर तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह ही की तरफ झुक गया। सारा काम अल्लाह ही पर, अल्लाह पर यकीन हमारा इतना बना। तो मेरे भाइयों, माँ जब ऐसी थी तो निजामुद्दीन है। मुसलमानों हम इरादा करें कि हमारी माएँ भी नेक हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी छोटी छोटी बच्चियां आज हैं। हमारी छोटी बच्ची आज आयशा है, 7 साल की, 5 साल की फातिमा है, कल ये मां बनी। कोई कहानी किस्सा नहीं है, कल मां बनेगी। अरे इसे पालोगे, फूसोगे, जवान होगी, जब इसे तुम नेक बना दोगे। मैं भी वाकया सुना रहा था, आप जो है अपनी बेटी को अंग्रेजी पढ़ा करके अगर अंग्रेज बना दिए, इसका मतलब यह हुआ कि उसको अपनी दीन की तालीम अगर नहीं दिया तो याद रखना उनके आने वाले दौर में जो बच्चा पैदा होगा वो भी नेक पैदा इसलिए नहीं होगा इसलिए कि उनकी मां नेक नहीं है। इसलिए हम यहां से इरादा करके उठे और अभी जो हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम आएंगे उनकी बातों से भी ये इरादा करके यहाँ से आज से लेकर उठे कि जितनी बातें हम सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल करें। मेरे भाइयों, माँ बाप नेक हो तो औलाद नेक होंगी, और माँ बाप अगर गुनाहों में मुलव्वस हो तो औलाद को नेक बनाने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमें यहाँ से एक पैगाम लेकर जाना है कि हम यहाँ से ये पैगाम लेकर जाएं कि हम अपनी बेटियों को, अपने बेटे को दीन की तालीम देंगे, कुरान की तालीम देंगे, शरीयत की तालीम देंगे, और अल्लाह राजी हो गया तो हमारा काम बन जाएगा, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो हमारा काम ही बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, यहाँ से इरादा करके उठें कि आगे रमजान मुबारक है, हम अपने घर में भी अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को भी तरबियत करें और इरादा करें कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करना बताए।